Hello friends, I am Mohanish. Welcome to this fresh video of Python. So in this video, we are going to learn about data types, variables and many other things. So I'll just make a new folder which I'll name it tutorial 9. So I'll just write it. And we'll make a Python file in this and we'll start our coding. So our file is being created and it's done. And now we are inside the file. Now I'll just open a file here and I'll name it main.py. So the file is being created. So our file is created. So first I would like to teach you about variables. So what is a variable? So variable, you can say it is like a container or a empty container with, like, you can delete anything or you can add anything. You can think of it like an example of like a water bottle. It has little water. You can drink it, you can refill it again, you can do many things with it. So variables are some kind of like that thing. So now I will tell you about data types. So what are data types? So as by the name you can understand, these are types of data in Python. So what are the types of data? So like in our school only they'll teach like numbers and they teach us alphabets. They teach us about many other things. So we can say that integer is a data type, like numbers is a data type, then like alphabets, which we call strings in the coding languages, is a data type, and many other things. Dictionary is a data type, set is a data type, then many other data types are there, and you can discover it, you can search on Google and do many other things. So I will just show you an example about data types. So I'll just be like var, I'll name the variable as var here. So I'll just type it var equal to, then I want to add a string. So string I'll add like this, like hello. So I added this string. So now I will try to print this string. So print var. So what it will do? So it will take the value of the var and it will print this hello as it is in the var variable. And now if we run the program, so it's the first run, so it will take little time. Till that I will talk about typecasting. So what is a typecasting? So typecasting is like changing one data type to another data type. So like if you have written here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, like any 3-digit number like 1, 2, 3, and you want it in a string from an integer to store it like in your arrays or anything, so you can use typecasting. So here you can see we have got a result of hello. So now I will show you an example of typecasting. So I will name a variable like var, then I'll write here 1, 2, 3. So so I'll name it different variable. So var, I'll change it to num. So num equal to 1, 2, 3. Then what I'll do, I will write str, then I'll write in brackets num, and then I'll write here class num. So here I will just do it. I'll just throw it in a variable. Okay, num class. Okay, and now here also, before also I'll write the class. So I'll be like num class 1 equal to class num.
So now we'll check it and we'll print both the statements. So दोस्तों मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, तो यहाँ पर मुझे क्लास की जगह टाइप लिखना होगा। तो अब मैं ये दोनों स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर देता हूँ। सो प्रिंट, एक स्टेटमेंट में हम लिख देते हैं कि num class 1 और दूसरे में हम num क्लास लिख देते हैं। तो num क्लास, और फिर हम इसको सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है, हमें आ रहा है कि क्लास का दोनों का इंट है। तो इंट क्या है यहाँ पर, इंटीजर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग नाम किया है, तो ये रन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने बस str नाम लिखा है, पर यहाँ पर मैंने str नाम को ना कहीं सेव किया है। मतलब मैंने अगर यहाँ पर str नाम लिख दिया तो इसका मतलब नहीं होता है कि वो एक्चुअली में str हो गया। तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लिख देता हूँ कि num1 इज इक्वल टू str नाम। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, num1 को प्रिंट करना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इंट आएगा और एक str है। ये देखिए, तो आपको एक str आ रहा है, एक इंट आ रहा है। तो ये क्या है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये होता है टाइप कास्टिंग। तो मैंने इस नंबर जो एक इंटीजर है उसको मैंने एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट किया है। तो मैं आपको ये कोड, मैं हमेशा मेरे सारे वीडियोस में जो मैं कोड यूज करता हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ थ्रू गिटहब। आप इसको फॉलो कीजिए, और अगर आप मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट को पहले से नहीं देख रहे हैं तो उसे शुरू से देखिए। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने टाइप कास्ट किया है, तो मेरा स्ट्रिंग हो गया इंट। और अभी मैं आपको ये मैं इंटीजर्स को मैं अभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो दिखाया है। अब मैं स्ट्रिंग्स को इंटीजर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ num3, और उसके हम लिख देते हैं कि कुछ, उसको हम ऐसे स्ट्रिंग में लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, num4 इक्वल टू int num3, और फिर प्रिंट में हमने num4 लिख देना है। तो num4, तो या इसे मैं सेव कर देता हूँ और रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 445 आया है। तो अब हम इसका टाइप प्रिंट करेंगे। तो वो हम लिख देते हैं कि टाइप ऑफ डेटा इक्वल टू टाइप num4। तो मैं इस टर्मिनल को किल करके एक और न्यू टर्मिनल खोलता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 445, और टाइप ऑफ डेटा को अभी हमने टाइप num4 किया है। तो अभी हम इसे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ डेटा, और इसे हम फिर से रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास का इंट आ रहा है। तो इंट क्या है, ये नंबर है, पर हमने तो ये स्ट्रिंग लिखा था। तो हमने इसका भी टाइप कास्टिंग किया है, और आप अभी समझ सकते हैं, आपको टाइप कास्टिंग का एक सिंपल आइडिया आ गया होगा। तो अब हम कुछ डेटा टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो अभी हमने ऐसे ही वेरिएबल्स के बारे में तो सीख लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कितने सारे वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, और यहाँ पर आपको डेटा टाइप्स तो थोड़ा आ गया है, जैसे स्ट्रिंग होता है एक डेटा टाइप, इंट होता है। तो मैं अब आपको एक डेटा टाइप के बारे में बताता हूँ जो होता है डिक्शनरी। तो आप ऐसे डिक्ट, मैं इसको एक वेरिएबल देता हूँ dict1 इक्वल टू, फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको हम ऐसे ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर लगाना होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डिक्शनरी मतलब क्या होता है, एक की और वैल्यू पेयर होता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं तो की वैल्यू पेयर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ
एक की होता है क्या, जैसे डिक्शनरी में क्या होता है, एक वर्ड होता है और उसका वैल्यू क्या होता है, उसका मीनिंग होता है। तो वैसे हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम पाइथन में इसको हम डिक्शनरी कहते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम इसको की वैल्यू पेयर्स कहते हैं। तो आप मत कंफ्यूज हो जाएगा इस दोनों के बीच में। तो मैं आपको एक डिक्शनरी बना के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मोहनीश को क्या पसंद है, कोडिंग। तो आपको ये, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर मैंने और कुछ 2 वर्ड्स लिख लेना है कि पाइथन और जावा। तो अभी मैं इसे डिक्शनरी नहीं कह सकता क्योंकि ये एक लिस्ट है। तो ये एक डेटा टाइप होता है, इसे लिस्ट कहते हैं। तो लिस्ट बस एक सिंपल, इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप जितना ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हैं। तो उसे हम लिस्ट कहते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये डिक्शनरी हो, कि ये मोहनीश एक की हो और कोडिंग एक वैल्यू हो जैसे डिक्शनरी में होता है, तो मैं यहाँ पर मिडिल में कोलन लगा देता हूँ। और यहाँ पर मैं यहाँ पर भी एक कोलन लगा देता हूँ, यहाँ पर कोलन। और फिर तो अभी ये क्या हुआ हमारा, ये हो गया एक लिस्ट। तो हमें अगर ये एक डिक्शनरी में बदलना है तो हमने तो पहले ही कोलन्स लगा दिया और इस ब्रैकेट्स को हमें करना है पैरेंथेसिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक एरर चला गया है। और मैं अभी आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ हमारा डिक्ट वन। तो भी हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आएगा कि मोहनीश कोडिंग और कॉमा करके पाइथन जावा। तो ऐसे बस सिंपल आ रहा है। तो अभी मैं एक और स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ कि यहाँ पर प्रिंट, यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देता हूँ और इसका मैं दे देता हूँ 1। तो यहाँ पर इंडेक्स दिया है मैंने, तो ये 1। तो ये मोहनीश हो गया 0 इंडेक्स, इसका 0 इंडेक्स है। और ये हो गया 1, इसका 1 इंडेक्स है। तो मैं अभी इसे रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि मैंने प्रिंट एक्चुअली कभी कभी ये हो जाता है कि स्टेटमेंट रन हो गया है। तो मैं यहाँ पर एक और डिक्ट 2 करके एक वेरिएबल असाइन करता हूँ और उसको मैं डिक्ट 1 का 1 मतलब उसका 1 इंडेक्स और प्रिंट डिक्ट 2 कर देता हूँ और इसे सेव करके मैं रन कर देता हूँ। और रन नहीं हुआ है ये। तो ये रन नहीं हो रहा है। तो हम एक और चीज ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम मोहनीश लिख देते हैं, ऐसे मोहनीश। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोडिंग प्रिंट हुआ है, बस कोडिंग। तो यहाँ पर क्यों हुआ है ये, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, डिक्शनरी 2 क्या होगा, डिक्शनरी 1 का क्वेश्चन होगा। तो आप ऐसे, मैं आपको थोड़ा असाइनमेंट टाइप देता हूँ। आप ऐसे कुछ 10 वर्ड्स की डिक्शनरी बनाइए। और जैसे मोहनीश का कोडिंग मैंने लिखा है, पाइथन का जावा लिखा है। आप ऐसे डिक्शनरी बना के या मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपनी डिक्शनरी यहाँ पर दे सकते हैं टाइप करके। सो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। जय हिंद।